Delhi and the surrounding area is facing severe pollution crisis. All primary schools have turned to an online mode. Recently, Gopal Rai has also said that the government offices have to go 50% work from home. Today, we have with us an environmentalist who will shed light on this crisis. Hello, sir. Welcome. Hello, Suparna. Hello. Thank you. Sir, so what are the major factors of this pollution? See, there are two factors. One is generation of pollution, production of pollution. Other is trapping of pollution. Pollution is generated, whether it's summers or winters, pollution is generated all around the year. But the government only comes on alert in winters. Because then the pollution is not able to disperse, it's being trapped in the city. So government is not bothered about production of pollution, controlling its production. Government is bothered about its dispersal. Why is it not dispersing to the hinterland? Hinterland means to Haryana and West UP. In summers, the pollution is dispersed to the fields, agriculture fields of West UP and Haryana. But in winters, the winds are so slow, and due to winters, low temperature, low inversion layer, the pollution tend to concentrate in the lower layer, which is cold. So it doesn't go up. By the time air blows from the hinterland, say from Haryana or from West UP, it takes a lot of time because winds are very slow. At times it's less than 9 km per hour. That's a very slow speed. And in the meanwhile, it starts concentrating more and more. The more pollution generates. So the government is concerned about its dispersal. Why is it not dispersing? So my main concern is that are we bothered about the production? Where are the sources of pollution? Why aren't we controlling them? Now private vehicles are the biggest contributors of pollution, vehicular emissions. So as far as that is concerned, Delhi has more cars than all the three metros of the country, Chennai, Mumbai and Kolkata. So we have a huge number of private vehicles in the city. We should have been controlling it, but we are allowing people to purchase more and more. So government is not taking an initiative, a strong measure to control this vehicular explosion. And second is dust, road dust. Road dust, there is a lot of road dust because new and new colonies are being built, new construction keep on going, new flowers keep building. There is no end to expansion of the city. And there are 27 industrial areas which are not confirmed, which are earmarked for redevelopment. In those industrial areas, there are kacha roads with lot of dust rising in those roads, and heavy vehicle movement is very slow. So a lot of diesel fumes keep coming out. So that adds another. So this way it all contributes, and it's a big problem for the entire city, and the city turns into a gas chamber with all these pollution emissions. And we need to control them throughout the year. We need to reduce the intensity. And the government keeps on, as a solution, the government keeps on building more and more roads, more and more flyovers. But I'll tell you, that adds to the problem rather than solve the problem. Is making roads and transportation easy is good for the public. So now I'm going by car, but then I see there's a lot of traffic jam ahead. So I prefer to go through some public transport or pool a car or something. But then I see the government has built a flyover or these two red lights. Now I can easily go to my destination using my private car. So I'll use my private car. So by building more and more flyovers and roads, they are facilitating more and more addition of traffic on the roads. So in various cities in the West, say Barcelona, they are dismantling the flyovers for this reason because it adds to the problem. We don't learn to live with what we have, rather than we keep going for more and more, adding more and more car by facilitating that. So this, there's no proper study on this in our city. Our city plans are not doing proper study on this, and resulting in this problem being increasing day by day. तो जैसे कि सर अभी हमने बात किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो क्या आपको लगता है कि क्या अगर हम सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो जाएं तो ये पोल्यूशन कम हो सकता है? नहीं सुपर्णा, आप जो कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आना, वो फिजिबल नहीं है क्योंकि वो एक कम्पैक्ट सिटी में ही पॉसिबल है। ये एक यूके की एक आर्किटेक्ट अर्बन प्लानर, नाम मैं भूल गया, उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि सिटीज़ शुड बी कम्पैक्ट, बट दिल्ली इज़ एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। जैसे कि देयर इज़ नो एंड टू द सिटीज़ एक्सपेंशन, कितनी ही ज़मीन ले लो और कितना ही शहर बढ़ा लो।
तो जब शहर ज़्यादा एक्सपेंडेड होगा तो पब्लिक रूट्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वाइबल। इतने रूट्स आप दे ही नहीं सकते। आपकी फिर बसें कारों से ज़्यादा हो जाएंगी। इतनी बसें कहाँ से लेके आएंगे, और बसों का लॉजिक नहीं बनता इतनी बसें। ये आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जितनी आउटर दिल्ली से जितनी बसें आती हैं वो आप देखेंगे कि काफ़ी वक्त में बसें खाली आ रही हैं। अच्छा। क्यों आ रही है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वाइबल इन पेरिफेरीज इन एक्सपेंडेड सिटी। तो वो वाइबल नहीं है। और जैसे एक उदाहरण के लिए बीजिंग हैड बिल्ड 6 रिंग रोड्स, से दे फाइनली क्लोज द 6th रिंग रोड क्योंकि public transport wasn't viable. People were buying private cars more and more. So they closed the 6th ring road. No further habitation beyond that. The planners must understand कि भाई ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक लिमिटेशन है। ये कम्पैक्ट सिटी में ही फिजिबल है, वाइबल है। आप इसको शहर को बढ़ाते जाओ और कहो कि नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग लेंगे नहीं क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। आप इतने रूट कहाँ से दे देंगे लोगों को? अल्टीमेटली दे हैव टू टेक देयर कार। अरे मैं अपनी कार से जा सकता हूँ, यहाँ तो 4 बसें बदल के कैसे जाऊँगा? ये एक इस पर भी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है सरकार। उनको 2014 में हमने लिख के दिया था ये बात, पूरा दिल्ली सरकार को, डीडीओ को लिख चुके हैं, वो केंद्र सरकार ने, लेकिन इनका इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अब पॉल्यूशन ट्रैपिंग का एक दूसरा मुद्दा आता है जो अभी मैंने आपको शुरू में 2 फैक्टर बताए थे। दिल्ली को आप जितना बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा वो पॉल्यूशन ट्रैप कर रहे हैं। आप सपोज उदाहरण लेता हूँ, आप एक घर में रह रहे हैं और बाहर एक जनरेटर चला है, कोई वेस्ट बर्निंग हो रही है, तो उसका थोड़ा सा अगर धुआं अंदर घुसने लग गया तो घर के अंदर धुआं ही धुआं हो जाएगा, आपकी वो स्मेल बढ़ जाएगी, लेकिन घर के बाहर जाएंगे आपको नहीं मिलेगी वो, क्योंकि घर उसको ट्रैप कर रहा है। तो एनी हैबिटेशन, एनी स्ट्रक्चर, अगर वहाँ आप जो रोक सकता है किसी चीज़ को तो वो ट्रैप हो जाता है। तो एक शहर है, शहर की बिल्डिंगें हैं, पूरा फैला हुआ शहर है, कोई भी हवा कहीं से, जैसे पंजाब से स्टबल बर्निंग आ रही है, जब इतनी दूर से आ रहे हैं रास्ते में, गांव में तो वो ट्रैप नहीं हो रही क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, पर दिल्ली में आती वो ट्रैप हो जाती है, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन 15-16% से ज़्यादा नहीं है पीक सीजन में भी, लेकिन ट्रैप तो हो रहा है पंजाब से आकर। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी हैबिटेशन, कोई भी बिल्ड स्ट्रक्चर है, एक्सपेंडेड सिटी है, वो ट्रैप करता है। अब आप से 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक कस्बा है, उसने कितनी हवा ट्रैप की, इसी तरह सपोज 2 स्क्वायर किलोमीटर के कस्बे में 10 यूनिट पॉल्यूशन ट्रैप कर लिया। इसी तरह अगर 2 की जगह 4 स्क्वायर किलोमीटर का टाउन है तो वो 10 यूनिट नहीं, वो 40 यूनिट ट्रैप करेगा। वैसे तो हमने डबल किया साइज, सिटी का साइज, लेकिन वो पोल्यूटेड एयर को 4 गुना ट्रैप कर रहा है। मेरे कहने वाला कहीं ज़्यादा करता है। तो इसको कर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं? शहरों का साइज नहीं बढ़ाना चाहिए। अब दिल्ली में आप कितने, ये नोएडा एक्सटेंशन जेवर तक फैल रहा है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। शहरों का साइज जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वो पोल्यूशन ट्रैप होता जाएगा, वो मतलब एक्सेलरेट होता जाएगा ट्रैपिंग उसकी। तो एक अप्रॉक्सीमेटली कितने एरिया में एक शहर होना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर हो, कि वहाँ की कंडीशनिंग अच्छी हो? देखो दिल्ली में इस पे प्रॉपर ऑप्टिमम साइज हम बोलेंगे इसे, इस पर अगर प्रॉपर स्टडी हो जाए, रिसर्च हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। तो अगर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस पर कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी, ताकि गाइडेंस मिल जाए फर्दर सिटीज़ कैसे डेवलप होने चाहिए। लेकिन जैसे हम दिल्ली का हिसाब लगाते हैं, दिल्ली करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है दिल्ली का। अभी भी इसके अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो करीब 1200-1300 स्क्वायर किलोमीटर में है। अब बहुत पॉल्यूशन ट्रैप हो रहा है इसके अंदर। और कभी जब पॉल्यूशन की समस्या इतनी नहीं थी दिल्ली में, तो उस समय दिल्ली का एरिया करीब 500-600 स्क्वायर किलोमीटर था। तो उस दौरान इतनी कम से कम जोग्राफिकली 500-600 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना तो इसको तो लिमिट में रखो, इससे ज़्यादा करे हो तो ऑप्टिमम साइज़ जो होता है उससे वो पार जा रहे हैं। ऑप्टिमम साइज़ में सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही, पानी की भी विषय आ जाता है कि आसपास आपके पूरे चारों तरफ हिंटरलैंड में कितना पानी अवेलेबल है नेबरिंग स्टेट से जो आप ले रहे हैं, आपके नदी है उसको कितना पोल्यूट कर रहे हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, वेस्ट डिस्पोजल है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो आपको देखेंगे कि शहर फिर काफ़ी कम्पैक्ट करने की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसी स्टडी ये करते ही नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं कर रही है सरकार ऐसी स्टडी? क्योंकि अगर सरकार का ध्यान कहाँ है? अगर क्योंकि कुछ सालों पहले हमने स्मोक टार्स भी सुने थे, स्प्रिंकलिंग सुना था, अब वो कहाँ है, उनका इम्पैक्ट कहाँ है?
देखिए स्मोक टावर, स्प्रिंकलर, ये ऐसे नहीं कि ये कोई बुरी चीज़, अच्छी चीज़ है, सरकार ने स्टेप लिया, कोई बुरा नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल है। अच्छा। तो ये कह दिए टोटका किया है, अच्छा। सही शब्दों में, तो टोटके हैं ये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इनका कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाकी मेन तो शहर का साइज़ बढ़ाना और शहर के अंदर बाकी पोल्यूशन जितना सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना, ये विषय हम है। एज अ सोसाइटी इस पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जनता का वैसे एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि लेमैन डजंट हैव मच पावर्स टू डू एनीथिंग फॉर द सिटी और फॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज टेकन ओवर बाय द स्टेट इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आप कर क्या सकते हैं? जैसे मैं मुंडका किराड़ी एरिया में बहुत 8-10 साल से लगा हूँ कि जी हाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सरकार को लिखा, हमने काफ़ी पब्लिक मूवमेंट भी किए, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं। तो अब उसको पब्लिक इशू बनाते हैं, तो राम मंदिर और मस्जिद और मंदिर का इशू सारा दबा देता है, तो फिर एनवायरनमेंट इशू नहीं बन पाता है। तो यूँ करके जनता के पास वाकई में करने के लिए ज़्यादा है नहीं। जनता जो कर सकती है वो सरकार को बोल सकती है कि जी हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको मालिक बनाया स्टेट का, हमारे पास कोई पावर नहीं है। अब आपने जवाब देना, पोल्यूशन है तो आपने भुगतना है, हमें मत भुगतने दी। जैसे नदी है, यमुना नदी पॉल्यूटेड है। 10 साल पहले इस दिल्ली के सीएम जो होते थे केजरीवाल, इन्होंने कहा कि 5 साल बाद 2014 में उन्होंने कहा 5 साल बाद मैं यमुना नदी में नहाऊंगा, पर उसके बाद 10 साल हो चुके हैं, वो नहाए नहीं है। अगर नहा लें, अभी बीजेपी के नेता सचदेवा, उन्होंने डुबकी लगाया तो वो बीमार पड़ गए। तो ये तब करेंगे जब हम जनता इनको मजबूर करें कि आपको यमुना में नहाना है हर हफ्ते एक बार, तो फिर यमुना की सफाई वे कर देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वे नहीं करेंगे, उनको मतलब ही नहीं यमुना से। इसी तरह हवा के बारे में कुछ करना पड़ेगा कि जी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रह के देखिए जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, और आप बिना मास्क के रहेंगे वहाँ, और आप अपने बच्चों को भी वहीं रखेंगे, तब आप गवर्नेंस दे दीजिए हमें, फिर हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें में आंदोलन चलेंगे तब, क्योंकि सरकार सिर्फ क्राइसिस में काम करती है। उनकी जब सरकार पर जोर आता है कि हमारी सरकार गिर ना जाए, जनता खड़ी होगी, तो वो क्राइसिस हम पैदा करेंगे तो मान जाएंगे हमारी बात। अब क्राइसिस हम पैदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद पर वोट दे दी तो उनके लिए बड़ा क्राइसिस और क्या हो सकता है कि जो देश का कैपिटल है वो सांस नहीं ले पा रहा, सफोकेट हो रहा है कैपिटल। इससे बड़ा कोई क्राइसिस नहीं हो सकता, बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन अब जनता के जहन में ये बात ज़्यादा समय नहीं रहती है, और जनता, इसलिए मैं कह रहा हूँ आम जनता बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है। हाँ, उनकी जेब पर अगर इसका असर पड़ता हो, या वे लिंक कर सकते हो कि इससे मेरी सेहत खराब हुई और मेरा इतना पैसा साल का या 5 साल में मेरा इतना पैसा अस्पताल में डॉक्टर के पास गया है और मेरे बच्चों की सेहत खराब है, अगर इसको जनता लिंक कर पाए तो वे एक्शन ले लेंगे। लेकिन जनता वो लिंक नहीं कर पाती है, वो समझ नहीं बन पाती आम आदमी में कि इस पॉल्यूशन से मेरा कितना जेब का नुकसान हो रहा है। जिस दिन वो अगर ऐसी रिसर्च के कुछ आंदोलनकारी ही इस बात को फैला दे तो फिर जनता खड़ी हो जाएगी। लेकिन कि आम जनमानस इतना नहीं सोच पाता है, तो कुछ एक्टिविस्टों को ही करना पड़ेगा, पर एक्टिविस्टों को सपोर्ट कौन करे, कैसे क्या हो। तो इसीलिए मामला ऐसे ही चल रहा है, जो नेता चाहते हैं वो होता रहता है। अफसरों को मतलब नहीं खास, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी से आए हैं, उनकी कल्चर ऐसी है कि साइन करके काम चल जाते हैं, उनके घर बढ़िया चल रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया की है पोल्यूशन प्रॉब्लम, या इंडिया में और जगह भी इसका इम्पैक्ट पड़ा? हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली गंजेटिक प्लेन्स हुई या पंजाब एरिया हुआ, ये प्लेन एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके अंदर ये पोल्यूशन की समस्या सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एक तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हवाएं यहाँ आर पार नहीं हो पा रही हैं। पर साउथ इंडिया में ये पोल्यूशन ज़्यादा ठहर नहीं पाता है। वहाँ चेन्नई हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, इनमें आप पोल्यूशन लेवल देखेंगे इन दिनों में 100 के आसपास है, कहीं 100 से भी कम है, क्योंकि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन अलग तरह की है। साउथ इंडिया पेनिनसुलर फॉर्म में है, दोनों तरफ समुंदर है, तो समुद्र की हवाएं साफ़ करती रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। समुद्र की हवा ठंडी होती है, कई बार गर्म होती है, इधर धरती की सरफेस की हवा का टेम्परेचर अलग है, दोनों एक्सचेंज होती रहती है टेम्परेचर अलग होने के कारण। तो इस कारण हवा का रेगुलर आना जाना, तो वहाँ का पॉल्यूशन टिक नहीं पाता है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई ऐसा डिफरेंशियल और टेम्परेचर नहीं है कि एक एरिया और दूसरे एरिया में, तो हवाएं हमारे बहुत बड़े एरिया के ऊपर डिपेंड करती हैं कि
सेंट्रल एशिया से हवाएं आ गई, कोई डिस्टर्बेंस आ गया उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ लोकली डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ लोकल ज़्यादा घूम नहीं पाती हैं, जिसके कारण डिस्पर्स नहीं हो पाती हैं। और नॉर्दर्न इंडिया की प्लेन्स के अंदर वो कंसंट्रेशन बनी रहती है पोल्यूशन की, क्योंकि हवा एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। अच्छा, सो ऐसा आप ट्विटर यूज़ करते हैं? कभी कभार। हाँ, तो एक्स पे हमारे व्यूअर्स को भी बता दें, अभी बहुत सुबह से डिबेट चल रही है कि लोगों को कन्नड़ सीखकर साउथ में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हाँ। वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आने वाले कुछ समय में हम ये भी देख पाएंगे कि इंडिया का कैपिटल साउथ चला जा चुका है? चांसेस तो बनते हैं इस हिसाब से, साउथ जाना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट आपकी तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उससे पहले सरकार कभी नहीं चाहेगी इतने लोग एकदम से डिस्प्लेस हो जाएं कहीं से। तो कोशिश तो करेंगे इसे कंट्रोल करने की, कैसे करेंगे लेट्स सी, करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन सोर्सेज पे आप कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहर इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। अब जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, बहादुरगढ़, ये सब दिल्ली के चारों तरफ है। ये दिल्ली के एक्सटेंशन है, ये अलग से सैटेलाइट टाउन नहीं है। हाँ। हम अक्सर बोल देते हैं सैटेलाइट टाउन से इनके अंदर बहुत पोल्यूशन हो गया और वो आ रहा है। सोसाइटीज भी बन रही होती हैं यही बोलकर कि वो हाँ। खुद में ही एक टाउनशिप है। हाँ, नहीं, सरकार इस तरह प्रेजेंट करती है कि दिल्ली से बाहर के से पोल्यूशन आ रहा है। अरे भाई, वो दिल्ली के ही एक्सटेंशन है, वो दिल्ली का हिस्सा है, क्या आपने बनाए बिल्कुल बगल में है। अगर आपको दिक्कत होती साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव से, तो आपको पहले ही ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। ये आप अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका पोल्यूशन आप में आएगा, आपका पोल्यूशन उनके वहाँ जाएगा, टोटल मिला के बहुत बड़ा पोल्यूशन लेवल बन जाएगा। तो कभी दिल्ली सरकार ने ना डीडीए ने, किसी ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि भाई शहर को बगल की स्टेट के शहरों कम से कम बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, कम से कम 80 किलोमीटर दूर होना चाहिए अगला शहर। अगर आप दिल्ली को सुरक्षित चाहते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं बगल के शहर गुड़गांव, नोएडा, इन सब में पोल्यूशन ना हो, तो उनके और दिल्ली के बीच में या किसी अन्य शहर के बीच में कम से कम 80 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। बीच में खेती हो या फॉरेस्ट हो, ऐसे कुछ होना चाहिए, तभी आप राहत पा सकते हैं। ये बिल्कुल शहर के साथ जोड़ के शहर बना रहे हैं। ये पोल्यूशन लेवल तो कंसंट्रेट होना ही है। हवा आपकी मदद नहीं कर पाएगी। पहले हवा आपकी मदद करती जब शहर छोटे थे, लेकिन शहर इतने बड़े कर दिए तो हवा कहेगी मैं बस की नहीं आपके शहर साफ करना। तो सर्दियों में हवा भी। सर, तो आरावलीज पे और जो ग्रीन जोन्स हैं दिल्ली में, उस पे क्या असर है? देखो, दिल्ली में एक तरफ अरावली जो करीब 77 स्क्वायर किलोमीटर है, इधर यमुना फ्लड प्लेन्स है, ये भी करीब इतनी स्क्वायर किलोमीटर, 70-75 स्क्वायर किलोमीटर बची हुई है अभी। इसके कारण दिल्ली को काफ़ी राहत। अगर ये नहीं होते तो दिल्ली का और बुरा हाल होता आज की तारीख में, है ना। अब क्योंकि इनके बावजूद भी इतना काफ़ी पोल्यूशन है, इसका मतलब हमने ग्रीन बफर बाकी छोड़े नहीं है काफ़ी। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, इसमें बफर जोन है ही कहाँ आपके पास? या तो यमुना है और साउथ दिल्ली में आपके पास रिज एरिया है, सेंट्रल दिल्ली में रिज एरिया है। बाकी इन तीन दिल्ली में, 3 डायरेक्शन में आपके पास बफर जोन नहीं है। बफर जोन इसलिए पोल्यूशन लेवल बहुत हाई रहता है। बफर जोन का ये सिर्फ पेड़ों का मामला नहीं। आप रोड पे खूब पेड़ लगा दे दिल्ली में खूब, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि दिल्ली इज़ द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्रीनेस्ट भी है और मोस्ट पोल्यूटेड भी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पेड़ से काम नहीं चलेगा। अगर आपको पोल्यूशन से लड़ना है, आपको ओपन स्पेसेस चाहिए हर कॉलोनी के बाद, ताकि वो ओपन स्पेस जब अच्छा हवा हो शहर के अंदर, उस टाइम वो उसको इन्वेंट्री स्टोर करके रखे अच्छी हवा को। और जब पोल्यूशन बढ़ जाएगा, शहर में हवा नहीं चल रही, उस दौरान लोकली इंटरचेंज करके आपका पोल्यूटेड एयर को क्लीन कर दे। तो वो बफर स्पेसिस है नहीं शहर के अंदर, बाकी साउथ दिल्ली के अलावा तो नहीं है। साउथ दिल्ली में रिज एरिया काफ़ी है इनके पास, तो वहाँ जैसे आप रिज के पास जाएंगे तो आपका पोल्यूशन लेवल कम होने लग जाता है, लेकिन बाकी दिल्ली में तो नहीं है। तो इनको हर कॉलोनी के बीच में, हर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बीच में आपको एक बफर जोन क्रिएट करने की जरूरत है। रीडेवलपमेंट करे पूरी दिल्ली की, और कुछ एरियाज़ को डिस्प्लेस करें वहाँ से, उनको दूसरी जगह दें। और अभी एक चीज़ नोट कीजिए कि दिल्ली सरकार को हमने इतना कहा कि दिल्ली को और एक्सपेंड मत कीजिए। आखिरी बची एग्रीकल्चर लैंड है 80,000 एकड़ है, जो कि वेस्ट दिल्ली में बची हुई है, हरियाणा बॉर्डर की तरफ, नॉर्थ दिल्ली में है और साउथ वेस्ट में है, कि इसको आप ख़त्म मत कीजिए। इसको आप एज एग्रीकल्चर कंजर्व कीजिए या कोई ग्रीन यूज़ के लिए कीजिए। लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यहाँ 17 लाख फ्लैट बनाने जा रहे हैं। 80,000 एकड़ की ज़मीन दिल्ली के अंदर जो भी एग्रीकल्चर है वो ख़त्म होने जा रही है। तो आप सोचिए, अभी ये हाल है दिल्ली का, तो अगर आप 17 लाख फ्लैट और बन जाएंगे, यानी 1 करोड़ लोग और बस जाएंगे, इतनी और गाड़ियाँ आएंगी, तो और क्या हाल होगा दिल्ली का।
बिल्कुल। तो सरकार बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है इस विषय को। ये सिर्फ मीडिया में आप लोग चिंता करके प्रोग्राम दे देते हो। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, वो सुन लेते हैं, एक कान से आया दूसरे कान से निकाल दिया। मगर मुझे अब लगता है कि हमारी सरकार से पहले जो इससे जूझ रहे हैं, जो हमारा समाज है, जो हम हैं, हम आप हैं, तो हमें पहले इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी या बोलना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार वोट्स की ही भाषा समझती है। तो शायद हमें एज अ सोसाइटी एक साथ खड़े होकर एनवायरनमेंट पे बात करना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट में जैसे हम रह रहे हैं, हमने ये सोसाइटी, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो नेचर है, ये कहीं एक फ्रेज पढ़ा था मैंने, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव एक्चुअली बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। सो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले जनरेशन के लिए कैसा एनवायरनमेंट छोड़ कर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और आपके इस सेशन से और आपके इस इंटरव्यू से जो आपने इंसाइट्स दिए हमें एनवायरनमेंट पे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हुए होंगे। और अगर आपको कोई और सवाल पूछना है पोल्यूशन पे, और आपको और कुछ जानना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट करें एंड वील गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज सुपर्णा श्री फॉर जागरण इंग्लिश।